So welcome back again. In the previous video I talked about the US hegemony in the world politics in terms of the hegemonic power, and the hegemonic power can be, already I told you the meaning, it can be of three types: the hard power, the structural power, and the soft power. I was discussing about the hard power. Hard power, more or less you can say it's a military strength and military capabilities, the diplomatic relationship and military actions, and how it has influence over others. It was the military power of USA, and this mighty military power directly or indirectly helped USA to establish its own supremacy or hegemony. So the hard power, military strength, the military expenses, this I was talking in my previous video. The next 12 powerful nations, those who are having the best military, you can say, capabilities next to USA, वो 12 कंट्री का अगर मिला देंगे आप military expenses of the budget, that will be equivalent to the budget of USA. Think about कितना पैसा वो खर्चा करते हैं. And this is what the goal for the military power to accomplish: to conquer, terror, punish and policing. Policing means how to make the policies and all those things. Right? So I discuss all about, this is what otherwise known as the hard power. So hard power talks about generally the military capabilities and how a particular country, how USA having its predominance because of its huge military strength, huge military capabilities, and all those credit goes to its R&D team, research and development team. They work day and night in order to make USA one of the most powerful nations in terms of military. So dear student, the second one, that's otherwise known as structural power. Structural power, structural economy, पैसे से बनते हैं structural power. And in the present day arena, economy, पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है. So जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा, that particular country is so prosperous and powerful. So that's exactly the structural power. Economic strength, US economic strength is huge, huge economic strength. पूरा दुनिया भर का जितना जीडीपी है, अकेले यूएसए का 21% जीडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. पूरा दुनिया भर का जितना इकोनॉमी है, उसके मतलब उसका 21% शेयर करता है अकेले यूएसए का. मैंने अकेले यूएसए का इकोनॉमी वर्ल्ड का इकोनॉमी का 21% होता है. और ये ओनली थ्रू बिजनेस नहीं होता है. इवन इफ यू कैन टेक द एग्जांपल 200 years back or 300 years back, it was English East India Company who came to India for business. कैसे बिजनेस हुआ? बिजनेस तब उनका बिजनेस का स्टैब्लिशमेंट हुआ और बिजनेस आगे बढ़ा जब इंडिया को कैप्चर कर लिए. कैप्चर कैसे किए? उनका बेटर मिलिट्री स्किल से कैप्चर किए. एग्जैक्टली इट्स द सिमिलर. So how the economic strength, how the economy, prosperity or economy of a particular country directly related to the hard power. क्योंकि उसको हम डरते हैं because they are very powerful in terms of military capabilities and उनके पास बहुत पैसा है, तो जाहिर सी बात है उनके पास हम जाएंगे और उनके साथ वो बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेस होंगे which is otherwise known as global public goods. उस रिसोर्स के ऊपर को अगर कब्जा जमाना होगा तो आपके लिए आपके पास एक बेटर मिलिट्री स्किल होना चाहिए, बेहतर डिफेंस होना चाहिए. व्हाट आर दोज ग्लोबल पब्लिक गुड्स? सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसमें सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, SLOCS बोलते हैं उसको, राइट? समुंदर, आपका जितना भी बिजनेस एंड ट्रेड है, ऑल डिपेंड्स ऑन द सी. समुंदर के होते हुए आना है, जाना है, ट्रेडिंग एक्टिविटीज सब उसी से होना है. तो जो जिसका नेवल जितना स्ट्रांग, वो इतना समुंदर में राज करेगा. अर्लियर इट वाज यूनाइटेड किंगडम सबसे स्ट्रांग था इन टर्म्स ऑफ द मोस्ट स्ट्रांगेस्ट नेवी ऑफ द वर्ल्ड. लेकिन अगर ग्लोबल पब्लिक गुड्स में अगर वो वाटर बॉडीज को कैप्चर करे, जब तक नहीं करेंगे तब इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर नहीं कर सकते थे, राइट? सो जितना भी सी लिंक है, जितना भी सी रूट है, हर एक जगह पे, हर ओशन में कैन से हर एक जगह पे जाके वो अपना इस्टेब्लिशमेंट बनाना शुरू किए, अपना पोर्ट, सी पोर्ट बनाना शुरू किए. सो दैट वाज नॉट ओनली टू हैव ए कंट्रोल ऑफ हार्ड पावर बट ऑल्सो स्ट्रक्चरल पावर. स्ट्रक्चरल पावर कैसे? बिजनेस एक्सपेंशन होगा. बिजनेस एक्सपेंशन के लिए इस चीज़ की जरूरत पड़ेंगे. अंडरग्राउंड वाटर टनल की जरूरत पड़ेगा जिसमें आपका क्रूड ऑयल जाएगा. बड़े बड़े शिप की जरूरत होंगे जिसमें कि आपके गुड्स कैरियर होंगे, आएंगे जाएंगे.
right? The second and the most importantly, free trade. This is very important. World Trade Organization, WTO, established in the year 1995. And US believed in capitalism, free trade. The entire world is a village for USA. And उनका जितने कंपनी हैं सब all multinational corporations, they went across the world. हर जगह से बिजनेस करना शुरू किए. And जब WTO में आप साइन करते हैं, if you become the member of the WTO, then you have signed a multilateral agreement, not a bilateral agreement. Automatically आपका बाउंड्री इंटरनेशनल मार्केट के लिए खोल देते हैं आप. यू विल सरप्राइज, यूएस में ऐसे भी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, उनका एनुअल बजट, एनुअल टर्नओवर हमारे जैसे देश का पूरा बजट से भी ज़्यादा है. इट्स सरप्राइजिंग. आज जितना मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस इंडिया में है, इफ़ यू कैन काउंट, मोर और लेस मोस्ट ऑफ द मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस बिलोंग्स टू यूएस और द वेस्टर्न कंट्रीज. सरप्राइजिंगली सुबह हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, दैट पर्टिकुलर द कंपनी विच make toothbrush or the toothpaste, and at the night you use liquidator, all belongs to multinational corporations. Hundreds of products you use across the time. So multinational corporations. This is all possible because of free trade, and all the free trade possible only because of World Trade Organization. And World Trade Organization को कंट्रोल करने वाला कौन है? यूएसए कंट्रोल करता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली. यूएसए में उसका हेडक्वार्टर है, राइट? देन अनदर पब्लिक गुड्स, दैट्स द इंटरनेट वर्ल्ड. सामान, कोई भी चीज़ का प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट करने के लिए फिजिकल एडवर्टाइजमेंट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, उस जगह पे जाकर एडवर्टाइजमेंट करना. बट बिकॉज ऑफ द इंटरनेट फैसिलिटीज, वर्चुअल वर्ल्ड, WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, लॉट्स ऑफ वर्क बीइंग डन बाय यूएसए इन दिस एरिया. इंटरनेट, गूगल से लेकर सब कुछ उनके पास है. एंड दैट मेक्स इट पॉसिबल, दैट मेक देम पॉसिबल टू कॉन्क्वर द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमी. पूरा दुनिया का इकोनॉमी कंट्रोल करने के लिए वर्चुअल वर्ल्ड के थ्रू से आपको जाना पड़ेगा. आपका मैक्सिमम मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट थ्रू द वर्चुअल वर्ल्ड होता है. अगर इंटरनेट एक दिन के लिए रुक गया तो पूरा दुनिया रुक जाएगा वहीं पे. आज हम यहाँ से बैठ के अगर अक्रॉस द ग्लोब कहीं से भी किसी से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. दैट्स बिकॉज ऑफ इंटरनेट. थिंक अबाउट योर लाइफ फॉर 1 hour विदाउट इंटरनेट. आज इन दिस द एरा ऑफ द कोरोना, अगर इंटरनेट को ब्लॉकेज कर दी जाए 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, योर लाइफ बिकम स्टैंड स्टिल. सो दैट्स द इन्वेंशन एंड दैट वर्चुअल वर्ल्ड बीइंग क्रिएटेड. वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएटेड. जब इंटरनेट आया, पूरा दुनिया एक छोटा सा विलेज बन गया, विच द WTO टॉक्स अबाउट ग्लोबलाइजेशंस, लिबरलाइजेशंस एंड प्राइवेटाइजेशंस. द एंटायर वर्ल्ड इज अ विलेज in order to sell their product. So, dear students, what I told about 21% of the world economy or the GDP, it only belongs to USA. 14% of the world trade, it directly goes to USA. And for the reconstruction of the economy across the world, in the developing economy, a developing country or the third world country, it's International Monetary Fund and World Bank. Both of them, they work a lot. And सबसे ज़्यादा रोल अगर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में कंट्रीब्यूशन एंड रोल एंड पावर अगर सबसे ज़्यादा किसी का है, दैट्स यूएसए. इट्स मेक लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस अक्रॉस द ग्लोब. मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इट्स केम इन 1900. ये बिजनेस चलाने के लिए, सब कुछ चलाने के लिए एक न्यू स्ट्रक्चर ऑफ सिलेबस, ए न्यू टाइप्स ऑफ प्रोफेशंस केम इनटू एग्जिस्टेंस, एंड दैट स्टार्टेड फ्रॉम यूएसए. यूएसए ने बनाया मैनेजमेंट स्टडी ए ब्रांच. जैसे आपका इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, ऐसे कि मैनेजमेंट का एक ब्रांच बनाया, ताकि वो चाहते थे कि ग्लोबली जो उनका पर्सनल काम करें, एक ही टाइप का पढ़ाई करें. सो इट मेक इजियर फॉर देम. एक टाइप का अकाउंटिंग सिस्टम बने अक्रॉस द ग्लोब, एक टाइप से काम किया जाए, एक टाइप का लेबर लॉ बने, अदर लॉज, जितना भी लॉज एंड रेगुलेशंस एक टाइप का अक्रॉस द ग्लोब बने. एंड मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आता है 1900 में. एंड दैट मेक लॉट्स ऑफ चेंजेस. एंड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन को चलाने वाले ये होते हैं. सो दैट द ग्लोबली यू कैन से जो उनका पॉलिसी है, मार्केटिंग पॉलिसी एंड बाकी जो पॉलिसीज ऑलमोस्ट सिमिलर हुआ, बिकॉज दिस पर्टिकुलर प्रोफेशंस केम फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज और फ्रॉम यूएसए. एंड वो अक्रॉस द ग्लोब उनके जो MBAs हैं, उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्सेस है, कैन से दे वर्क्स टुगेदर with a similar culture and a similar ethos. In the next video, I will be talking about soft power. Stay tuned, please.